friends, welcome back to my channel. Today we are going to discuss about antibiotics. Whenever we get sick, we consult doctor and usually doctor give us painkiller and antibiotics. We all have heard about antibiotics, but we do not know how it works. So today I am going to tell you about antibiotics. Antibiotic is a Greek word. Basically, anti means against and bias means life. So whenever there is attacking on your immunity which is against the life, so we prescribe antibiotic in such cases. Antibacterial, it's another name, used to treat infection caused by bacteria. Antibiotics were first used in 1940. Our immunity itself helps us to fight with all types of disorders with the help of WBC. That is our resistance power of the body. The first antibiotic was penicillin. Now I will explain you about types of antibiotics. Actually there are many types of antibiotics, but according to their function, antibiotics are divided into two major groups. The first one is bactericidal, where antibiotics kills bacteria, and the second type is bacteriostatic, in which antibiotics helps to stop the multiplication of bacteria. आपको पता है एक मजे की बात, हम सबके पेट में नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा मौजूद होता है जिसमें 1.5 से 2 करोड़ बैक्टीरिया हमारे पेट में होते हैं और जो हेल्प करते हैं हमारी नॉर्मल पाचन संस्था में. अब क्या होता है कि किसी भी गलत चीज से, गलत खान पान से, कभी गलत पानी पीने से या कंटेमिनेटेड फूड के कंजम्पशन से कुछ वायरसेस बॉडी में आ जाते हैं और उस समय हमारे पेट का नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा खराब होना शुरू होता है. अब हम बात करेंगे थोड़ा सा रोल ऑफ एंटीबायोटिक्स पे. यूजुअली एंटीबायोटिक्स टारगेट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. दे कैन अटैक बैक्टीरिया, पैरासाइट एंड फंगस, but they cannot attack on virus. URTI, that is upper respiratory tract infection, are due to viruses and hence there is no role of antibiotic. There are many side effects of antibiotics. They can be mild to severe. Mild side effects are depending upon which antibiotic has been used by the doctor. Second, the type of targeted microorganism and individuality of the patient. The common side effects are diarrhea, fever, nausea and anaphylactic shock. Though anaphylactic shock is not a common side effect, but it is very well known side effect, especially with the antibiotic penicillin. And that's why penicillin has been banned from India long ago. Fungal infection of mucous membrane such as mouth and vagina is again the side effect of antibiotic. Now there are some rare side effects but with common antibiotics. For example, sulfonamides can cause kidney stones, erythema nodosum, etc. Then cephalosporins may cause blood thickening and clot formation. Tetracycline can make you sensitive to sun. Trimethoprim may cause blood disorders. Erythromycin and aminoglycosides may cause deafness. There can be allergic reactions like rash, face edema and suffocation. Sometimes these reactions are fatal and they are known as anaphylactic shock. Antibiotics even destroy the normal bacterial flora of our abdomen. Those good bacteria produces natural antibiotics, anti-carcinogens and keep cholesterol within limits, regulating the function of digestive tract. Antibiotics may provide relief in frequent tonsillitis, sinusitis, upper respiratory tract infections in some cases, and frequent urinary tract infection. With every recurrence, but all these infections are recurring in nature, and with every recurrence we go to the doctor and doctor give you the course of antibiotic. You
get relief for some time and again you get the recurrence. Then again you go to doctor, visit him and the doctor give you the new course of antibiotic. So इसमें क्या होता है कि बार बार इन्फेक्शन हो रहा, हम बार बार एंटीबायोटिक खा रहे और डॉक्टर को कई बार एंटीबायोटिक बदल बदल के भी देने पड़ते हैं। तो कई बार एक ही बीमारी के लिए 2 से 3 साइकिल हो जाते हैं एंटीबायोटिक के। इसमें क्या होता है, टेम्पररी आपकी बीमारी के सिम्टम तो गायब हो रहे हैं, मगर बीमारी तो जहां के वही है, वो तो जड़ से खत्म नहीं हो रही है। एंड डिसअपियरेंस ऑफ सिम्टम्स इज नॉट द क्लियरेंस ऑफ द डिजीज। एंटीबायोटिक्स आर मेजरली प्रिस्क्राइब्ड ड्रग्स इन कन्वेंशनल मेडिकेशन टू बिल्ड अप गुड इम्यूनिटी एंड टू गेट रीड ऑफ एंटीबायोटिक्स। फाइनली अब क्या होने लगा है कि लोग परेशान होने लगे हैं कि बार बार इन्फेक्शन हो रहा और बार बार हम एंटीबायोटिक खा रहे हैं। कब तक कि हम लोग लक्षणों से लड़ेंगे? अब वक्त आ गया है कि हम बीमारी को जड़ से खत्म करेंगे और इसी की वजह से अब धीरे धीरे लोगों का होम्योपैथी के प्रति रुझान काफी बढ़ने लगा है। एंड यस, होम्योपैथी में एंटीबायोटिक्स जैसे इफेक्टिव काम करने वाली काफी मेडिसिन मौजूद है। टू बिल्ड अप गुड इम्यूनिटी एंड टू गेट रीड ऑफ एंटीबायोटिक्स, द बेस्ट चॉइसेस राइट नाउ इज होम्योपैथी। अब होता क्या है कि जब जब इन्फेक्शन होता है हम डॉक्टर के पास जाते हैं और हम सब जानते हैं कि मॉडर्न साइंस में, कन्वेंशनल मेडिसिन में एंटीबायोटिक इज द बेस्ट चॉइस। डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक देते हैं, कुछ दिन आपके लक्षण गायब हो जाते, अच्छा लगने लगता है, मगर कुछ समय के पश्चात जब एंटीबायोटिक का एक्शन खत्म हो जाता है तो फिर वापस से प्रॉब्लम होती है, आप फिर से डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर इस बार आपको एंटीबायोटिक बदल के देते हैं। कई बार यही होता है कि एक बीमारी के लिए अलग अलग एंटीबायोटिक से 2 से 3 कोर्स हम ले लेते हैं, मगर लक्षण केवल गायब होते हैं, बीमारी वही के वही रहती है। क्लियरेंस ऑफ सिम्टम्स इज नॉट द क्लियरेंस ऑफ डिजीज। अब ऐसे में करे क्या? तो लोग परेशान होने लग जाते हैं कि कुछ ऐसा करते हैं या कुछ ऐसा ढूंढते हैं जो हमारी बीमारी को परमानेंट ठीक करे और हमारे बॉडी के डिफेंसिव मैकेनिज्म को पूरी तरह से ठीक रखे। और इसीलिए अब डे बाय डे लोगों का होम्योपैथी में रुझान बढ़ने लगा है। और वैसे भी आप जानते हैं कि एंटीबायोटिक का एक सबसे बड़ा साइड इफेक्ट क्या है? जब आप लॉन्ग टर्म तक इसे कंज्यूम करते हैं तो ग्रेजुअली बॉडी डेवलप्स रेजिस्टेंस फॉर दैट पर्टिकुलर एंटीबायोटिक। और एक बार उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस डेवलप हो गया तो कभी इमरजेंसी में भी उसकी जरूरत पड़ी और आपने वो खाया तब भी उससे आपको बेनिफिट नहीं होता है, जो कि लाइफ के लिए बहुत डेंजर हो सकता है। सो नाउअडेज टू बिल्ड अ गुड इम्यूनिटी पीपल आर preferring homeopathy, and you know homeopathy is the scientific system of medicine. There are no toxic effects. All the medicines are well proved on healthy human being, not on the animals, but it is well proved on healthy human being of all age and both the sex. Speedy recovery in patients suffering from frequent infectious diseases is the desired result of homeopathy. Homeopathy achieved good reputation as a substitute to antibiotics in 19th century. Now approach to homeopathy. Homeopathic approach says it is the man who is sick. See, होम्योपैथी में ऐसा नहीं होता है कि आपका गला खराब है तो आपको एंटीबायोटिक गले से रिलेटेड दे दिया, या आपको साइनस की प्रॉब्लम है या आपको यूरिन में इन्फेक्शन हो रहा तो केवल उतने पार्ट पे एक्ट करने वाला कोई मेडिसिन दिया। नहीं, होम्योपैथी की खासियत ये होती है कि हम ये मानते ही नहीं कि आपके शरीर का कोई एक पार्ट बीमार हो सकता है। हम ये मानते हैं कि जब व्यक्ति संपूर्ण बीमार होता है, उसकी रोग प्रतिकारक शक्ति कमजोर होती है, तब जाके बीमारी उस पर अटैक करती है। एक एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ। अब समझिए कि आपके पास टॉन्सिलाइटिस के 2 पेशेंट आ गए। एक पेशेंट का टॉन्सिलाइटिस ठंडा पानी पीने से एग्रावेट हो रहा है और दूसरे मरीज का टॉन्सिलाइटिस ठंडा पानी पीने से अच्छा लग रहा है, लेकिन यदि वो कुछ गर्म पीता है तो उसकी तकलीफ बढ़ जाती है। अब देखिए, व्यक्ति 2 अलग अलग हैं, मगर यदि शायद इसका ट्रीटमेंट एलोपैथी से होता तो दोनों को सेम ही एंटीबायोटिक दिया जाता जो यूजुअली गले के ऊपर में काम करते हैं। मगर हम बात कर रहे हैं होम्योपैथी की। यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ ऐसा नहीं होता है कि आप एक अंगूठी लेकर बाजार में घूम रहे हैं कि भैया मेरे पास एक अंगूठी है, हर कोई अपनी उंगली इसमें डाल के इसको फिट कर लो। नहीं, हमारे पास में हर व्यक्ति के उंगली के अनुसार उसके साइज की अंगूठी बनती है और उसी को होम्योपैथी कहते हैं। तो 2 भिन्न व्यक्ति जब आपके पास आते हैं, भले ही इन्फेक्शन गले में है,
मगर एक व्यक्ति का इन्फेक्शन ठंडा पानी पीने से बढ़ रहा है और दूसरे का इन्फेक्शन गर्म पानी पीने से बढ़ रहा है, तो यहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस दोनों भी व्यक्ति में जो होगा वो अलग अलग होगा। ऐसा क्यों होता है, इसको मैं थोड़ा सा और सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, जब हमें भूख लगती है तो हम ये नहीं कहते कि मेरे पेट को भूख लगे, हम क्या कहते हैं, मुझे भूख लगी, मतलब मुझे, मेरे संपूर्ण व्यक्तिमत्व को भूख का फीलिंग हो रहा है। तो जब भूख का फीलिंग पूर्ण व्यक्तिमत्व को होता है, प्यास पूरे व्यक्ति को लगती है, केवल उसकी जीभ को या उसके मुंह को नहीं लगती है, तो कोई बीमारी केवल किसी एक पार्ट को कैसे हो सकती है। और यही होम्योपैथी का ब्यूटी है कि होम्योपैथी ये कंसीडर करता है कि व्यक्ति बीमार होता है, ना कि उसका कोई शरीर का एक पार्ट। अब देखिए, अगर हमको पूरी तरह ठीक होना है और बॉडी के इन्फेक्शंस को भी हराना है और हमें साइड इफेक्ट्स भी नहीं चाहिए, तो फिर अब हम क्या करेंगे, तब हम अल्टीमेटली होम्योपैथी में जाएंगे। और होम्योपैथी के पास भी एंटीबायोटिक्स है। यस, देखिए एक एग्जांपल बताती हूँ। होम्योपैथी में एक एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन नाम, जो हमने एंटीबायोटिक पेनिसिलिन से बनाया। अब तो खैर पेनिसिलिन इज बैंड इन इंडिया, लेकिन जिन लोगों ने बहुत पहले रोमेटिक फीवर्स के लिए पेनिसिलिन का इंजेक्शन लिए हैं, उसके साइड इफेक्ट यदि उनके बॉडी में आज भी है और उसकी वजह से उन्हें आज कोई भी तकलीफ हो रही है, कोई सिम्टम आ रहा है, बॉडी एक हो रहा है, फ्रीक्वेंट थ्रोट इन्फेक्शन हो रहा है या नी जॉइंट पेन हो रहा है, तो ऐसे केस में जब हमें लगता है कि हमें उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के साइड इफेक्ट्स बॉडी से निकालने हैं, तब हम पेनिसिलिनम रेमेडी को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा होम्योपैथी में एक और एंटीबायोटिक है, वो है स्ट्रेप्टोकोकाइनम। जैसे फ्रीक्वेंट सोर थ्रोट होता है, वो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की वजह से होता है, तो उसी बैक्टीरिया से इस रेमेडी को बनाया गया है। फिर जो एक्ने होते हैं यंगस्टर्स में फेस के ऊपर में, उसमें कई बार स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म रहता है, सो वी हैव स्टेफिलोकोकाइनम टू फाइट विद दैट पर्टिकुलर बैक्टीरिया। Then we have many more antibiotics in homeopathy, like meningococcus we have, pneumococcinum we have. So we have lot of antibiotics in homeopathy. तो अब ये आपको सोचना है कि आपको साइड इफेक्ट्स के साथ में जाना है टेम्पररी रिलीफ के लिए, या फिर परमानेंट रिलीफ विदाउट एनी साइड इफेक्ट, आपका चॉइस होगा। बिकॉज इट्स योर लाइफ, सो इट्स योर डिसीजन व्हाट यू वांट। सो अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हमने होम्योपैथी क्यों यूज करना है। अकॉर्डिंग टू मी, होम्योपैथी इज अ वाइजर चॉइस, क्योंकि ये बीमारी को जड़ से खत्म करता है, इसके कोई टॉक्सिक साइड इफेक्ट नहीं है, और सबसे मजे की बात ये है कि ये बहुत इंस्टेंट काम करता है। काफी लोगों की ये गलत धारणा है कि होम्योपैथी इज अ लॉन्ग टर्म थेरेपी। नो 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 नो, इट कैन वर्क इंस्टेंट एंड वी कैन यूज होम्योपैथी इवन इन एक्यूट डिसऑर्डर्स। आप एक डोज खाओ, 10-15 मिनट में आपको थ्रोट के इन्फेक्शन में डिफरेंस पता चलेगा। सो प्लीज लाइक माई वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कहीं पर भी आपको कुछ कमी लगती है तो डिसलाइक भी कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर छोड़िए, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।